honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। अरे एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, आई लव दिस राउंड टेबल। वो इसलिए कि आई कैनॉट सी द एक्सप्रेशन ऑफ एनीवन, सो आई कैन से वॉट एवर आई लाइक एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट यू थिंकिंग। So that is a great advantage of this round table format. The topic, as you know, is bureaucracy holding us back? Modi and India. Uday ji, you are the latest bureaucrat. Because no, you see, he left bureaucracy when he was an infant in the bureaucracy, that is. He hardly served 10 years and he left. So we'll ask him the reasons for that. उसके बाद पूछेंगे इनको कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। सावियो इज़ अ जर्नलिस्ट, तो ये इनका पर्सपेक्टिव अलग ही है। ये तो ब्यूरोक्रेट से वैसे भी नेचुरली इल डिस्पोज्ड हैं, तो इनको हम लास्ट में पूछेंगे। आप चूँकि लेटेस्ट हैं और बाकी लोग पुराने रिटायर्ड हो गए, मुझे रिटायर हुए 5 साल हो गए, राहुल जी को रिटायर हुए तो पता नहीं कितने साल हो गए। तो आप बताइए साहब, आपने CIC में काम किया एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। वैसे तो आपके जर्नलिस्टिक करियर में आप कई सारे ब्यूरोक्रेट से मिले होंगे, यू वुड हैव अ व्यू सर्टेनली। तो ये जब इनसाइडर का जो आपको टाइम मिला, उसको देखने के बाद जो ये आज का टॉपिक है, ब्यूरोक्रेसी होल्डिंग अस बैक, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? कुल मिला के आई एग्री विथ on the whole I agree with you that the way our bureaucracy has shaped over the last 70 years, we could have done much better had it been doing its job properly, Now what I saw is that there are people who make money. That is one, everybody knows. There are people who are very honest, but they don't give result. Correct? So there is some problem. I think there has to be research. This government tried to bring lateral entry, but there is a lot of opposition. So they have not been able to do it the way they maybe wanted to, But the best result out of the bureaucracy, if somebody has got, whatever the resources, is I think Prime Minister Narendra Modi. I have seen him working very closely 13 years, almost 13 years in Gujarat. And then and I have written 2 books also, Now, in Gujarat I saw that for the first time, he made the bureaucracy go into villages. This was a program regarding child enrollment in schools, And he issued a diktat that every June, which is the hottest part of the summer in Gujarat, bureaucrats will spend at least 2 days in villages imploring parents to send their children to school. And what came out of that? Enrollment was very low for girls. The reason was कि जो टॉयलेट्स थे स्कूल में वो कॉमन थे, तो माँ बाप ये बोलते थे कि हम बच्चियों को उसमें नहीं भेजेंगे, भाई बच्चों के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए. So when you go on ground, this is the result you get. And that's how in Gujarat, the whole process of having toilets, separate toilets for girls students started. Correct? But Mr. Modi he's a single person, and he had the drive to drive the bureaucracy. So he could get results. Otherwise, it is very difficult to control them. I'll tell you 2 things. 1, people make money. And 2, people who don't make money, they don't do your job. So this is a catch-22, If you're honest, you think, you just want to save yourself from any allegation. You're not producing result. So I personally think, you see, I have written 1 book on Savarkar. I accept Savarkar, the way he is. He committed the blunders, But I think Savarkar's nation first. That element has to be instilled in our bureaucracy. People who rule our country. In 1937,
when Savarkar was allowed to take part in politics, Subhash Chandra Bose, Achyutrao Patwardhan and S.M. Joshi, these three leaders approached him that you join Congress. I think they were having a problem with Mahatma Gandhi on the issue of complete non-violence. So well, they wanted that if Savarkar joined, then their whole thing will get stronger, their group, you know. Savarkar refused. Savarkar said that Congress is indulging in Muslim appeasement at the cost of Hindu rights. और ये करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है. It is betrayal of the nation. And saying that, and he said that the Congress has gone so far ahead on this path that I don't see that it can retract its steps. Therefore, he said, I prefer to stand in the last row of true patriots than the first row of those who are betraying the nation in the name of nationalism. And he decided to join Hindu Mahasabha, a very small party. Not that he agreed with Hindu Mahasabha. Savarkar had very radical views on social reform. Correct? But then it was the only party which was not indulging in Muslim appeasement at the cost of Hindu rights. So he joined. So he took a call. And Dhananjay Keer, his first biographer, anybody writing a book on Savarkar has to rely on Dhananjay Keer. He has written that this action of Savarkar was like that of Rana Pratap. When Rana Pratap was invited by Akbar, I will make you sit on the highest pedestal in the Mughal court in Agra. That time all his relatives, his brothers, everybody had joined Akbar. But he refused. And he sacrificed. Therefore he said this was Rana Pratap like of sacrifice on the part of Savarkar, because had Savarkar joined Congress at that time, there was no position he could not have gained after joining the Congress. So that is true nation first. A lot of people talk about nation first. But somewhere their own interest is also there in that nation first. So this is the true nation first of Savarkar, which very few people can match even today. Correct? So that spirit has to be instilled in the bureaucracy. Otherwise what will happen? Honest आदमी ये बोलेगा अरे यार गुप्ता फंस गया था उसके अंदर कोल स्कैम के अंदर, मैं ये डिसीजन नहीं लूँगा. उसको ये सोचना है कि हमने प्लेज खाई थी स्कूल के अंदर कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं. आई एम वर्किंग फॉर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. व्हेन आई वर्कड एज कमिश्नर आई वर्कड विद दिस स्पिरिट. माई लॉ ऑफिसर इज टू टेल मी कि सर ये आप ये जजमेंट दे रहे हो, इसमें तो सरकार कोर्ट में चली जाएगी. मैंने कहा भले कोर्ट में जाए, आपको लगता है ये आदमी जेन्युइन है, थक गया है बेचारा दौड़ दौड़ के, ब्यूरोक्रेसी ने इसको थका दिया है, इसको हक नहीं मिल रहा है. मैंने कहा आई विल गो फॉर दिस. मैं उनको क्या बोलते हैं उसको, एक वर्डिक्ट होता है जिसमें आई टू टेक सब्जेक्ट हिम टू क्वेश्चनिंग एंड टेक एवरीथिंग डाउन ऑफिशियली एंड देन गिव माई जजमेंट. एंड आई टू गिव देम इवन थिंग्स विच दे हैड नॉट डिमांडेड. Correct? So my approach was that I am a believer in Savarkar, therefore nation is first for me, and therefore if I am convinced that this man has been wronged by the government, I must stand by him and I must help him. So that spirit is missing. There are people when they join Lal Bahadur Shastri Academy for training, they are very spirited, but something happens on the way, you know. एक तो करप्शन का खेल है कि भाई मेरे बगल वाले ब्यूरोक्रेट ने इतना अच्छा बंगला लिया है, वाइफ बोली कि आप क्यों नहीं ले सकते हो भाई, क्यों ईमानदारी का पुतला लेके घूम रहे हो भाई, टोकरा लेके सिर पे, समझा. तो क्या इसका सॉल्यूशन है मुझे मालूम नहीं. लेटरल एंट्री इसका सॉल्यूशन है या इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि कुछ हम ऐसी चेंजेस लाएं ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिसके अंदर की ट्रेनिंग स्टेज से ही वो ऐसे नेशन फर्स्ट वाले मोड में आ जाएं. लेकिन बड़ा एक चेंज आवश्यकता है, समझा ना. और ये देखने के बाद देखिए मैंने अच्छी स्टोरीज की मिस्टर मोदी के गवर्नेंस पे एट दैट इन्वॉल्व ब्यूरोक्रेसी, समझा आप. एक मेरी स्टोरी से आए थे एंड ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग राज इन दिल्ली. करेक्ट. आई हैव डन मेनी स्टोरीज ऑन हिज गवर्नेंस, बट स्टिल आई फील had there been a more responsive bureaucracy, you could have given even better results. Thank you. जी अब मैं चलूँगा राहुल सूर जी के पास. राहुल सूर जी का परिचय करा दूँ. आप इंडियन पुलिस सर्विस में थे, फिर उसके बाद फिर यूएन असाइनमेंट पे गए, फिर यूएन में इन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है. तो ही हैज़ डबल पर्सपेक्टिव, ही हैज़ अ पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन ब्यूरोक्रेसी और ऑल्सो ऑन इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी. तो राहुल जी आप थोड़ा बताएं कि क्या इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी हमारी ब्यूरोक्रेसी से बेटर है?
ऑन करना माइक। धन्यवाद संजय जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तो इसके लिए अगर इसके अंदर इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी और इंडियन ब्यूरोक्रेसी में यदि हमने कंपैरिजन करना हो तो इसके अंदर फंडामेंटली ये डिफरेंट है कि इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी को जो डेवलपमेंट रिजल्ट्स जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी को देने पड़ते हैं वो आवश्यकता और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है। तो इसलिए हम उनके यदि प्रोसेसेस कंपेयर करें तो प्रोसेसेस में जितना समय हमारी ब्यूरोक्रेसी को लेती है यहाँ पर प्रोसेसेस में, शायद उतना ही समय कभी कभी और भी उनको वो लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी है उनके प्रोसेसेस हमारे प्रोसेसेस से कुछ अच्छे हैं। मगर ये जो आज जो प्रश्न है कि इज़ द ब्यूरोक्रेसी कीपिंग मोदी एंड इंडिया डाउन, इसको उत्तर देने के लिए मैं कुछ मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे हम इसके ऊपर ठीक तरह से इंफॉर्मेशन ले सकें। क्योंकि अंग्रेज़ी में एक सेइंग है कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। अब इंडियन ब्यूरोक्रेसी को देखें तो इट इज़ अ वेरी ओल्ड डॉग, ये तो ब्रिटिश के ज़माने से चल रही है और वही ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस के टाइम भी थी और वही ब्यूरोक्रेसी मोदी के टाइम भी है। तो हमारे सामने साइंटिफिक सवाल ये है कि कांग्रेस की टाइम की ब्यूरोक्रेसी और मोदी की टाइम की ब्यूरोक्रेसी के रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, इनके बीच में हमको डिफरेंस पता चलेगी, फिर हम इस प्रश्न को आंसर कर सकेंगे कि हाँ आर दे लेटिंग इंडिया डाउन और नॉट। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ फिगर्स लाया हूँ कि एक्सट्रीम पावर्टी जो वर्ल्ड बैंक $2.15 पर डे पर डिफ़ाइन करती है वो अब घट के 18% से घट के यहाँ पर 12% हो गई है। मिडिल क्लास जो 2014 में 300 मिलियन अब बढ़ के 520 मिलियन हो गई है। सेक्स रेशियो जिसके ऊपर भारत की हमेशा निंदा होती थी वो इम्प्रूव 896 से 917 हो गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि जन्म देते समय माँ का मृत्यु हो जाना 130 से लेकर 93 हो गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो 40 से कम होकर वो 25 हो गया है। डाउरी डेथ्स जो हमारे देश के लिए अभी भी कलंकित हैं 8,455 से कम होके 6,405 तक पहुंच गया है। तो यदि आप इन फिगर्स को देखें और ये आप देखें तो कितने डायरेक्ट बेनिफिशरीज इंक्लूड हुए हैं। इनकम टैक्स में 182% जो इंक्रीज़ हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन में। और ये जो अगर आंकड़े आप देखें तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ब्यूरोक्रेसीज़ के कंपैरिजन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ब्यूरोक्रेसी से अधिक काम निकाला है। सो दिस इज़ द साइंटिफिक कंक्लूजन विच आई हैव रीच्ड। अब कोई मुझे लगता है क्रिटिकल इंडिकेटर्स भी आई थिंक हो गए हैं जो ज़्यादा वेलकम नहीं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी में ओबेसिटी बढ़ गई है 91% इन विमेन एंड 146% इन मेन। तो यदि हम इस सवाल को देखें कि इज़ द ब्यूरोक्रेसी होल्डिंग इंडिया एंड मोदी बैक, आई थिंक आई विल एग्री विद यू कि येस इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज एफिशिएंटली एज इट शुड, बट इट इज़ परफॉर्मिंग मच बेटर एंड द क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर मोदी। यस। नाउ क्रेडिट के समय आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का यदि आपने क्रेडिट का डिवीज़न करना है तो डेफिनेटली के majority of the credit will go to Mr. Modi because he is the person who has the vision. पर implementation is everything. तो implementation में हमारी ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है और उनके माध्यम से ही काम होता है. So I will say to the Congress bureaucracy I will give say out of 129 and to the Modi bureaucracy I will give 49%. So that is my answer in the comparative sense. ओके अब हम अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी से वैसे आप लोग परिचित होंगे, लेकिन मैं बता दूं एक बार कि अविनाश जी आईएएस ऑफिसर से इन्होंने 10 साल बाद रिज़ाइन कर दिया था। ये मेरे बैचमेट भी हैं इंसिडेंटली, वी डिड आवर ट्रेनिंग टुगेदर। और
10 साल में ही क्यों रिज़ाइन कर दिया? मुझे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी से इनका कोई मोह भंग हुआ होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि इनको पोस्ट नहीं मिली। ये पुणे में ये कलेक्टर का चार्ज होल्ड किए हुए हैं, रायगढ़ में फुल फ्लेज कलेक्टर थे, सेक्रेटरी टू सीएम थे, और उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया और फिर बच्चों को पढ़ाने लगे। तो अविनाश जी, रहस्य बताएं। जितना हो सके आत्मकथा में मैं कम से कम समय लूँगा और इस विषय पर आऊँगा। आईएएस होने से पहले 11 साल में एक पूर्णकालीन कार्यकर्ता था कि जिसके दरमियान पूरे देश की समस्याओं की पढ़ाई की, आंदोलन किए, लेखन किया, चाहे खालिस्तान मूवमेंट हो, कश्मीर हो, पूर्वांचल हो। उसने मुझे एक दृष्टि दी कि अंतःकरण में भाव कार्यकर्ता का, लेकिन हाथ में अधिकार आईएएस के हो तो मैं और सेवा कर पाऊँगा। इस दृष्टि से एक एग्ज़ाम दिया, हो गया आईएएस, कैडर भी महाराष्ट्र मिला, और वहाँ भी जो 10 साल रुका तो बिना मेरे मांगे एक के बाद एक मुझे अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी गई। यहाँ तक के त्यागपत्र देने के समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सचिव, सेक्रेटरी था। तो व्यक्तिगत रूप से तो कोई मोहभंग की बात नहीं है। रिज़ाइन करने की मुख्य वजह थी अब शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से काम करना है, उसके लिए पूरा समय चाहिए, पूरी ऊर्जा उसमें डालना है, और उसके साथ साथ स्वतंत्रता भी चाहिए। उसी शिक्षा के क्षेत्र के काम का एक हिस्सा है, चाहे यूपीएससी द्वारा आईएएस, आईएफएस, आईपीएस हो, या स्टेट के पीएससी द्वारा अधिकारी हों, तो जो देशभक्त अधिकारी हों ऐसे निर्माण करना। अगर मैंने, संजय जी ने अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर सीधे रास्ते पर अगर काम किया तो ऐसे अधिकारियों की फौज खड़ी करने का मूल उद्देश्य, और उसका अब ये 30वां साल है। मुझे कहते हुए आनंद है कि अब इन 30 सालों में पूरा भारतवर्ष हो, इंडियन फॉरेन सर्विस में हो या स्टेट में, जो कि अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं, जो कि देश के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं, ऐसे तो अधिकारी अब सिस्टम में अंदर जाके काम कर रहे हैं। पर जो आज का मुद्दा है, इस ब्यूरोक्रेसी होल्डिंग मोदी एंड इंडिया बैक, एक पूरी दृष्टि से उसकी तरफ देखें, एक साथ पूरे विषय की तरफ, तो मुझे ये कहते हुए कोई खुशी नहीं है। अगर कुछ है तो तीव्र वेदना, गहरा दुख है। लेकिन सत्य का सामना करना, सत्य को आँख से आँख मिला के देखना ज़रूरी है। तो पहले तो इस सत्र का टॉपिक है, इज़ ब्यूरोक्रेसी होल्डिंग मोदी एंड इंडिया बैक। आई एम डीपली सैड टू से अनफॉर्चुनेटली येस इट इज़। अब इसमें थोड़े में कहते हुए भी मैं 2 हिस्से बनाऊंगा। एक है खुद मोदी जी की बात, और दूसरा और गहराई में जाता है पूरे भारतवर्ष की बात। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो शुरू में तो गुजरात की ब्यूरोक्रेसी ने भी उनका कड़ा विरोध किया। ये सब कहानियां भी आई हैं और उदय जी की किताबों में भी वो हैं। लेकिन मोदी जी ने राज्य के स्तर पर जो जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी से काम करवाया, एक्सेलरेट करवाया, और वो अनुभव लेके वो केंद्र में पहुँचे। उसमें जो मोदी जी का पहला टेन्योर है, तब तो जो केंद्र की ब्यूरोक्रेसी, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट पूरी गहराई में जा चुके थे, वो उससे पहले 10 साल जो राज्यकर्ता वर्ग था उनसे मिले जुले थे। उनके जहन में नहीं आ रहा था कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री जी हो गए। तो पहले टेन्योर में तो हम जानते हैं कि कईयों ने तो या तो उन्होंने वापस अपने स्टेट में जाना पसंद किया, या मोदी जी ने उनको बता दिया कि रिपैट्रिएट आप वापस जाइए। लेकिन एक किस्सा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे, उसके निर्णय आने से पहले मोदी जी ने एक दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग ली थी और उनको बताया कि तुम लोगों ने मेरा पहला टेन्योर तो तुमसे लड़ने में ही ख़राब कर दिया, पर अब मैं वापस आ रहा हूँ, अब आपका मुझे सहयोग चाहिए। तो 2019 में मोदी जी वापस आ गए, बढ़त और ज़्यादा लेके वापस आ गए।
उसके बाद की खबरें तो यह है कि दिल्ली ब्यूरोक्रेसी ने घुटने टेक दिए। अब उसकी भी गहराई में फ़िलहाल मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है थोड़े में, और मैं चाहता हूं कि शुरू में पहले जो कमेंट है उसमें मैं और भी गहराई में जाऊं। उदय जी जहां कह रहे हैं कि मोदी जी ने ब्यूरोक्रेसी से काम करवाए, इससे मैं 100% सहमत हूं, पर मुझे लगता है समस्या गहरी है जहां जाना राहुल जी ने शुरू किया कि एक तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है, सिस्टम डिज़ाइन, वो ब्रिटिशों ने बनवाया और उसमें जो आमूलाग्र परिवर्तन करना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ब्रिटिशों ने जो बनवाया वो रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन था, करीब करीब पुलिस स्टेट था, और उसका उद्देश्य था यहाँ के लोगों को दबाए रखना है। स्वतंत्रता अगर हमें जब मिली तो इसका मतलब है कि अब प्रशासन की भूमिका में ही परिवर्तन आ गया कि अब मात्र यहाँ की जनता को पैरों तले दबाए नहीं रखना है, अब तुमको विकास को गति देना है, राष्ट्रीय एकात्मता को गति देना है। पर ये कहने वाली बातों से नहीं होता है, इसके लिए सिस्टम डिज़ाइन में चेंज चाहिए। एक मेटाफर राहुल जी ने दिया, उससे भी मैं सहमत हूँ। सालों से मेरे मन में चला आ रहा मेटाफर है कि जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था है अब वही चल के डिलीवर करें, तो ये तो वो अपेक्षा हुई कि बबूल के कांटेदार पेड़ को आम लग जाएंगे, वो कहाँ से लग जाएंगे। तो हमें एक तरफ चाहिए सिस्टम चेंज जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ज़्यादा अकाउंटेबल टू पीपल हो, एफिशिएंट हो, जिस पर कानून मैंडेटरी हो के काम समय में होना चाहिए, भ्रष्टाचार विरहित होना चाहिए और लोगों के प्रति उत्तरदायित्व चाहिए। एक तरफ वो रास्ता है व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन अकेले व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता भी काम नहीं करेगा, उसके साथ साथ चलना जरूरी है, चरित्र निर्माण का काम है। ये दोनों, माने अकेले चरित्र निर्माण भी काम नहीं कर पाएगा, अकेले व्यवस्था परिवर्तन भी काम नहीं कर पाएगी। ये व्यवस्था परिवर्तन और चरित्र निर्माण का साथ साथ में जाना जरूरी है। जैसे जो छोटा काम शिक्षा के क्षेत्र में मैं कर रहा हूँ, हमने उसको एक लाइन का टैगलाइन लिखा है कि वेयर सिविल सर्विस इज सर्विस टू द नेशन, सर्विस टू द पीपल। अब लोग ही राष्ट्र हैं, ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्री अरबिंदो जी ने कहा। तो जो ये भाव चाहिए कि ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, सब लोग मेरे अपने हैं और मैं सत्ताधारी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, ये जो भाव होना जरूरी है। और वो भाषणों से नहीं होगा, वो पूरी जो चयन की प्रक्रिया है यूपीएससी की, फिर जो पूरा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में ट्रेनिंग है और पूरा जो सिस्टम डिज़ाइन है, पर्सोनल पॉलिसीज़ है, इन सभी में आमूलाग्र परिवर्तन चाहिए। तो जो एक ही बात कहते हुए मैं पहली बात क्लोज करूँगा, मेरे शिक्षा के क्षेत्र काम को मैंने चाणक्य का नाम जानबूझ के दिया। चाणक्य का एक 2 पंक्तियों का बहुत ही बेहतरीन श्लोक है जहाँ वो कहता है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा हिते च हितम नात्म प्रियम राज्ञः प्रजा नाम तो प्रियम हितम। चाणक्य कहता है कि जो शासनकर्ता वर्ग है उसको अपना निजी सुख कुछ नहीं है, जो लोगों का सुख है वही मेरा सुख है, जो लोगों के लिए प्रिय है वही मेरे लिए प्रिय है। जब तक ये चरित्र नहीं होगा और उसको उजागर करने वाली व्यवस्था की रचना नहीं होगी, तब तक ये समस्या रहेगी। इसलिए उपाय है कि एक साथ व्यवस्था परिवर्तन और चरित्र निर्माण के रास्ते पर हम आगे चलें। थैंक यू अविनाश जी, वेरी वेल पुट। सावियो के पास चलूँगा मैं। सावियो रॉड्रिग्स, आप गोवा क्रॉनिकल के एडिटर इन चीफ हैं और बड़े मुखर रहते हैं और ख़ास तौर से क्रिश्चियंस में रूढ़िवादिता को लेकर इनका बहुत बड़ा काम है और इसके लिए निर्भीक भी हैं। तो और चूँकि ये प्योर जर्नलिस्ट हैं तो इन्होंने गोवा में भी देखा होगा ब्यूरोक्रेसी को और दूसरे स्थानों पर भी देख ही रहे होंगे। गोवा की ब्यूरोक्रेसी वहाँ टैक्सी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाई। मतलब गोवा, मेरे ख्याल से केरला और गोवा 2 अकेली ऐसी जगह हैं जहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको ऊबर ओला नहीं मिल सकती।
वहाँ पे आपको टैक्सी यूनियन से ही लेनी पड़ेगी। तो साथियों, आपका क्या टेक है इस प्रश्न पर? Can you hear me? Excellent. Well, it's very interesting to be in front of the four experts. I'm not an expert in bureaucracy, but I do a lot of investigation of bureaucracy and people within the government. So to look at the question that was asked, which is bureaucracy keeping Modi back? I think there is a section of the bureaucracy that want Modi out. And I'm not kidding. There is a very influential section of the bureaucracy that wants Modi out. And I'll tell you why I say that. So this was during the recent elections that happened, the 2024 elections. And you had a lot of joy in the BJP and the political party that they were going to do about 400 seats. A lot of the exit polls spoke about doing 372, 400. Some were even over ambitious to go above 400. And one of the colleagues of mine who was working on it, and he's also a co-author with me in a book, Amit Bagaria, also did his own exit poll analysis based on feedback that he was getting, and he also said about 350 that we put on the Goa Chronicle. I got a call from a very senior bureaucrat who was stationed in Kashmir. And he called me and he said, "How come you were getting it wrong?" I said, "Sorry, I don't understand. What do you mean?" He said, "You're saying that BJP is going to do about 350 odd seats." I said, "Yeah, that's what Amit's team, and Amit's a part of our team, so I'm going to go with what he's saying." He's saying BJP will not cross more than 250. I said, "Okay. And what about the opposition?" He said, "Congress might reach 100, but might fall short." And I laughed it out. I said, "What nonsense. Everybody is saying that they're going to do 350 and Congress is going to do very bad." And then the exit polls got over, the results came, and then I started seeing the numbers. Then I tried to call him. I wasn't able to reach him for 2 days. He was busy with something. But when everybody else got it wrong, he got it right. So after 2 days, when I spoke to him, I asked him, "How did you get it right?" He says, "I'm a bureaucrat. And we decide what the eventuality is." Right? Just one thing, While I was conducting elections, I never got it right. Well, I think the guy, And plus, if anyone says we are the bureaucrats, we decide what does, the guy is egoistic and eminently wrong. I'm only, don't shoot the messenger. I'm just. I started getting it right only after I got out of the bureaucracy. Don't shoot the messenger. It's merely the guy who's getting the information. So the point is this. One of the mistakes we make is that we all talk about a ruling government or bureaucracy contributing to ruling. And I think that terminology itself is wrong. There are no rulers in this country anymore. There are people who govern. So it's a bureaucracy that is working on governance. It's the political leaders that are working on governance. There is no ruler. There's a lot of times our over-enthusiastic supporters of the BJP and Prime Minister Modi talk about priest-king and, various other fancy terminology. Modi himself does not believe in those terminologies because he sees himself as a sevak, and that's why he calls himself a Pradhan Sevak, right? The country is like a car. The political leader is the driver, and the bureaucracy is the fuel. Without the fuel, the driver can do nothing to the car. And that's why it's so integratedly connected
that while certain sections of the bureaucracy might want Modi out, bureaucracy strengthening is very important for this country. And bureaucracy strengthening will only happen is if the bureaucrat starts thinking as a nationalist, which is what I agree with all of them, than as a bureaucrat. And being a nationalist is not about putting the political leader first. It is about putting the nation first in the decisions that you have to make. Because many a times, let's be brutally honest about it, most political leaders do not even hold a placard to the educational prowess that a bureaucratic officer has. Very few actually have it. So in the presence of the bureaucrat, the educated, knowledgeable person that can actually build policies, build plans, is actually the bureaucrat. The political leader is a mass leader that's able to convince people to support him or support his party or support the ideology or the policies that he's moving. But the planning, the implementation is the bureaucrat. And therefore, it is important for us to ensure that the bureaucrat himself does not fall prey to the machinations of the politicians. For example, again another revelation, and don't shoot the messenger, okay? A northeastern state, a startup company from Hyderabad visited a northeastern state. They went to the bureaucratic officer in charge of education. The bureaucratic officer linked them to the minister. They put out a proposal that was worth 6 crores in rupees. The education minister tells them, we cannot accept a proposal of 6 crores. So he said, sir, is it high? He says, no, it's low. He said, okay, sir, should I increase it by about 1 or 2 crores? He says, no, you have to increase it by 36 crores. Now that's blatant corruption. And who agrees on it? The political leader might have initiated it, but the bureaucrat follows on. So in the cleaning up of corruption, it is both the political leader and the bureaucrat that need to work together to clean it up. Otherwise, the system is not going to get cleaned. Right? And this is what I told a very senior minister in Delhi. Modi ji ne bola hai, na khaunga, na khane dunga. लेकिन गोवा जैसे राज्य में और अन्य राज्य में लोग खा नहीं रहा है, करप्शन को पी रहा है, और यही फर्क है. तो मोदी जी को बोलना चाहिए कि यार भाई लोग, भाइयों बहनों, आप पीना भी बंद करो, क्योंकि खाना तो आपने बंद किया, पीना बंद नहीं किया आप लोगों ने. थैंक यू. उदय जी से पूछना चाहूँगा. मेरे ख्याल से हेलो, लेट मी ये स्टोरी एग्जांपल्स के थ्रू दें. एक मिनट में थोड़ा सा देखिए, मोदी जी को भी 13 साल हो गए, 14वां चल रहा, या नहीं सॉरी, अभी 11 हुआ, 12वां चल रहा. तो यूपीएससी का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, और आज के ज़माने में आप जानते हैं कि भारत में यदि आपको अकबर को महान से और महाराणा प्रताप को महान बनाना है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ का चेंज करें या ना करें, यूपीएससी का सिलेबस यदि आप चेंज कर देंगे तो सब चेंज हो जाएगा. नहीं हुआ. उसके बाद एकेडमी को ले लीजिए, एलबीएस एकेडमी में, आप तो जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है. एक छोटा सा मैं आपको एक रिसर्च टास्क देता हूँ. वो पिछले 5 साल में जो गेस्ट लेक्चरर्स बुलाए गए हैं वो कौन कौन है, उसका अध्ययन कर लें. हो सकता है आपको भी बुला लिया हो कभी, लेकिन अभी 2-3 साल पहले तक तो योगेंद्र यादव वॉज रेगुलर देयर. तो अब ये अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं सुधर रही है तो क्या इसका थोड़ा बहुत अंश मोदी जी पे नहीं जाता? मैं आपसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि मूल परिवर्तन अगर लाना हो तो जो
धर्माधिकारी साहब ने कहा वो उसका एकमात्र उपाय है। और वो देखिए, ये भी मैं जानता हूँ, इससे मैं परिचित हूँ कि लेफ्ट टाइप के लोग, डिविजिव टाइप के लोग भी लेक्चर अभी तक देते थे। तो ये बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है। और ये हाँ, हेलो हाँ, तो मैं इनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि मूल रूप से परिवर्तन ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए था, स्टार्टिंग विद LBS एकेडमी। मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई योगेंद्र यादव वहाँ पे आते थे, तो वो तो एक है ही, लेकिन जो सॉल्यूशन इन्होंने बताया धर्माधिकारी साहब ने, वो उसका रियल सॉल्यूशन है। हमें उसमें देखिए भयंकर परिस्थिति, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ सालों पहले मुझे एक बड़ी राशि की आवश्यकता थी, घर में कोई ओकेजन था उसके लिए। जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो मैंने बेचने को निकाली थी, लेकिन वो डिस्ट्रेस सेल में जाने की परिस्थिति हो गई। 2 रुपये वाली प्रॉपर्टी आपके 1 रुपये में खरीदे तो आप कैसा लगेगा आपको? तो मैं उसको होल्ड कर रहा था और वो ओकेजन बिल्कुल पास में आ गया था। मतलब ये परिस्थिति हो गई कि मेरे घर वाले बिल्कुल टेंशन में आ गए। एक सज्जन है, मेरे दूर के परिचित हैं, वो एक प्रपोजल मेरे पास लेके, आप सुनने जैसा है, क्या परिस्थिति है कि रायगढ़ का कलेक्टर, रायगढ़ यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, वहाँ एक आदमी का आप पोस्टिंग कराओ तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो मेरे को तो पहली बार मालूम पड़ा कि साला एक कलेक्टर की पोस्टिंग के 5 करोड़ रुपए। मुझे नहीं मिले, हाँ मुझे नहीं मिले, हाँ न दिए न लिए। तो कहने का मतलब मेरा जवाब ये था कि जो व्यक्ति अगर पोस्टिंग और ट्रांसफर के पैसे लेता है, जो व्यक्ति टिकट दिलवाने के पैसे लेता है पॉलिटिक्स में, वो देश की कोई भलाई नहीं कर सकता, देश की कोई सेवा नहीं कर सकता। मैंने कहा मेरा जो ओकेजन है, बहुत बड़ा ओकेजन था, मैंने कहा भले नहीं होगा ये, लेकिन इस टाइप का पैसा मैं लूँगा नहीं, लेकिन मैं उसका विरोध करूँगा उस आदमी का, कि कौन है वो आदमी इस टाइप का जो धंधा कर रहा है, समझे आप? तो कहने का मतलब बहुत सारी इसमें तकलीफें, लेकिन आपको श्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे कि सूद साहब ने कहा, मैंने तो काफ़ी उन पर किया हुआ। दिल्ली में 2014 में क्या परिस्थिति थी, आप दिल्ली का पोस्टिंग ले नहीं सकते थे। कोई मिनिस्टर की पहचान चाहिए, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट की पहचान चाहिए। मोदी जी आने के बाद में परिस्थिति शुरू हुई कि उड़ीसा में कोई कलेक्टर बैठा है तो उसको फ़ोन जाता है PMO से कि भाई हमने तुमको सिलेक्ट किया है, तुमको यहाँ आना है। तो लोग दंग रह जाते थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी पोस्टिंग दिल्ली में ऐसी अच्छी जगह पे हो सकती है। तो जो फिगर सूद साहब ने बताई, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उससे एक प्रमाण मिलता है हमें कि नरेंद्र मोदी ने ऐसी ब्यूरोक्रेसी, देखिए ब्यूरोक्रेसी का जो डाउनफॉल है, पहले से उसका सिस्टम तो गलत था ही, जैसे धर्माधिकारी साहब ने बताया, लेकिन डाउनफॉल कब शुरू हुआ? जब 1977 इलेक्शन के अंदर, ये मैंने मेरी किताब में भी लिखा है, जब जगजीवन राम ने छोड़ा इंदिरा गांधी को, जब इंदिरा गांधी वापस आई 1980 के अंदर, तब उनके मन में ये हो गया कि भाई लॉयल्टी इज़ द मेन क्राइटेरिया। तो पहले तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसको पॉलिटिक्स में, जिसे बरुआ ने पहले कहा था कि भाई इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस टाइप का कल्चर घुस गया। और फिर वो कल्चर घुस गया ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो जो ब्यूरोक्रेसी का आधार ही एक तरीके से डिफेक्टिव था, उसमें एक और एलिमेंट घुस गया ये, और उसके बाद में जो डाउनफॉल हुआ बहुत फास्ट हुआ। उस डाउनफॉल में से उभारने वाले कुछ हद तक वो है श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं दीक्षित साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि आमूल रूप से परिवर्तन जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है, इनके अंदर की लॉबी होती है। IAS है, वो IFS को नहीं आन देगा, IFS वाला IAS को नहीं आन देगा। IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, समझा? तो वो बड़ी स्ट्रांग लॉबी होती है। तो मुझे सब में अच्छे जो सुझाव लगे वो धर्माधिकारी साहब के लगे। जो हमें एक आमूल परिवर्तन लाना पड़ेगा, सिलेबस के अंदर लाना पड़ेगा, और नेशन फर्स्ट की स्पिरिट डालनी पड़ेगी। ये ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए कि हम सेवक हैं। अगर हम स्कूल में शपथ ली हमने कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो हमें उस स्पिरिट से जीना पड़ेगा। और मैंने इसको, जो 3 साल का टेन्योर मुझे मिला एज CIC, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, मैंने इसको जिया है और इसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। मतलब आप समझो कि मेरी कोर्ट के अंदर ही कोर्ट होती है, मेरी इंफॉर्मेशन दिलवाने की कोर्ट, मेरी कोर्ट में एक वीक में कम से कम 5 आदमी ऐसे होते थे जो रो के निकलते थे बाहर। 2 आदमी पीड़े के वजह से रोते थे और 3 आदमी
मैं जो जजमेंट देता था उसके वजह से रोते थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा मिल सके। मैं इसको क्रेडिट करता हूँ नेशन फर्स्ट, सावरकर का नेशन फर्स्ट, वही हमें लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में पहले दिन से डालना पड़ेगा, समझे ना। और करप्शन को दूर करने का एक प्रयत्न करना पड़ेगा। देखिए मैं मानता हूँ कि अभी देखो, अभी ईडी ने एक स्टेप लिया है तमिलनाडु के संदर्भ में कि जहाँ की कई पोस्टिंग पैसे से लेके कई दी गई। अभी 4-5 दिन पहले रिपोर्ट थी। मैं मानता हूँ एक नया लॉ आना चाहिए जिसके अंदर जो लोग पैसे खा रहे हैं पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के अंदर, उनको एक तरीके से एक 10 या 20 साल की सज़ा उनको होनी चाहिए। ये मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है। और दूसरा कि देखिए कैसा होता है कि जैसे कि डीबीटी है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक सफलता है मोदी सरकार की। पर डीबीटी के अंदर भी जो अंदरूनी गांव है, खास करके ट्राइबल्स के, वहाँ जो चेकबुक है, पासबुक है बैंक की, वो सरपंच रखता है और वही आता है वहाँ पे। बहुत कम है ऐसा, पर अभी भी है। जिन गाँव के अंदर, जिन ट्राइबल विलेजेस के अंदर एजुकेशन नहीं है, ऐसी विलेजेस भी अब कम होने लगी है, काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे है ऐसा अभी भी। तो हमें एक एंटी करप्शन लॉ बहुत बड़ा लाना पड़ेगा जो ब्यूरोक्रेसी को पनिश करे। जी और उधर ऐसे जी लोगों को हम पनिश करे आगे चलेंगे। कि जो लोग इसमें पैसे खा रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। एक्चुअली हम थोड़ा लेट शुरू हुए तो थोड़ा सा समय कम हो गया। राहुल जी, संक्षेप में करप्शन के कारण और उसका निदान। करप्शन के कारण तो बहुत हैं, करप्शन के कारण तो बहुत हैं, मगर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया कि केवल राष्ट्रवाद की जो भावना है ब्यूरोक्रेट्स में पैदा की जाए और उसके कारण सब ठीक हो जाएगा, मैं ये नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि जब तक करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के मन में भय की भावना नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आने से पहले कुछ रिसर्च की, तो जो आंकड़े हैं मैं कुछ आपको बताता हूँ कि 2015 से लेकर 2020 तक जो आईएएस ऑफिसर्स के विरुद्ध करप्शन के एलिगेशंस थे वो 380 थे। ये बढ़कर 2020 में 753 हो गए। और उसी समय आईपीएस ऑफिसर्स के विरुद्ध 22 एलिगेशंस आई हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स के विरुद्ध एलिगेशंस बढ़ना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोगों में भय कम हो रहा है। और इसके ऊपर मैंने जब एनालिसिस की तो उसके अंदर पाया कि 98% ऑफ द एलिगेशंस वर अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ओनली अगेंस्ट नॉर्थ। मुझे केवल 2 एग्जांपल्स मिले जहाँ पर साउथ इंडिया से थे। 98% ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन नॉर्थ इंडिया। और यदि आप वहाँ पर के आंकड़े देखेंगे, वो चौंका देने वाले आंकड़े, 500 करोड़ के इमेजिन आईएएस ऑफिसर्स एम्प्लॉयमेंट में, गन लाइसेंस में, लैंड डील्स में, पता नहीं किसके अंदर वहाँ उन्होंने करप्शन की हुई है। तो आईएएस की जो करप्शन है, क्योंकि वो जनरलिस्ट सर्विस है, क्योंकि वो सबसे सीनियर सर्विस है और क्योंकि वो शासन का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हमको उसके ऊपर अधिक एज अ प्रायोरिटी मैटर जोर देना चाहिए। अब ये कैसे किया जाए? तो क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर देयर इज़ इंक्रीमेंटल चेंज। यदि आप लगेगा तो इंडिया में बहुत अचानक बहुत परिवर्तन आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता। आई थिंक इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज। तो इसके अंदर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के लिए उनका एक एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न होता है कि आपके पास घर कितना है, उस रिटर्न को बदल करके लिक्विड एसेट्स भी डालने चाहिए। आपके पास पैसा कितना है, सोना कितना है, चांदी कितना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इतना ही नहीं, हर ऑफिसर को 5 साल के बाद एक स्पेशल कमेटी के सामने बुलाकर उनके साथ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए। उसके अंदर एक सवाल ज़रूर होना चाहिए, क्या आपने इस साल में आपके जो नीचे करने वाले अधिकारी हैं उनकी करप्शन के बारे में क्या आप जानते हैं और आपने क्या किया? अब इससे क्या होगा कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है और उसको पता है उसके नीचे काम करने वाला भ्रष्ट है और फिर भी उसने साइन करना है मैं नहीं जानता, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। अधिकारियों के मन में वी हैव टू पुट अ सेंस ऑफ फियर एंड अकाउंटेबिलिटी, नहीं तो नहीं सुधरने वाले। दूसरी बात यह है
कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सिटीजनरी, आपका मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो करप्शन को फाइट करने के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन्स का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। अब ये नहीं कि हमने इंडिया में जो सामाजिक त्रुटियां हैं उसके विरुद्ध हम नहीं लड़े, जैसे डाउरी के विरुद्ध, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन के विरुद्ध हम लड़े हैं। तो जिस तरह हम एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं जिसका मूल नियम ये है कि उस एसोसिएशन के कोई भी सदस्य घूस नहीं देगा। अब वो एक स्लोगन था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर ये स्लोगन होना चाहिए कि ना दूंगा ना देने दूंगा। तो इसके अंदर यदि, क्योंकि भारत की मिडिल क्लास अब बढ़ रही है और करप्शन का पहले ये कारण होता था केवल दरिद्रता, पावर्टी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इसके लिए जो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल मोदी के ऊपर, केवल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर या भरोसा मत रखिए। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। थैंक यू। जो भी मैं सुन पा रहा हूँ उससे यही लगता है देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस। क्योंकि करप्शन की भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक राजस्थान में बड़ी प्रचलित बात कहा करते थे, साहब करप्शन 3 तरह का होता है। एक जबराना, दूसरा नजराना और तीसरा शुक्राना। जबराना मीन्स एक्सटॉर्शन, नजराना मीन्स क्विड प्रो को, और शुक्राना मीन्स थैंक्स गिविंग। तो अब देखा मैंने धीरे धीरे कि लोग जो है वो शुक्राना को उन्होंने करप्शन से अलग कर दिया कि ना, ये शुक्राना तो हमने तो मांगा नहीं, कोई दे गया उबलाई जो के तो ठीक है, डजेंट मैटर। फिर शुक्राना के बाद से धीरे धीरे नजराना भी होगा कि भाई ये तो ठीक है, क्विड प्रो को। ओनली जो पुलिस टाइप का, टैक्स टाइप का, एक्सटॉर्शन टाइप का, दैट रिमेन करप्शन। एनीवे, तो जो भी मैंने सुना उदय जी को और राहुल सूर जी को, उससे मुझे यही लगा कि देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस। मैं बेसिक्स पे आता हूँ वापस। अविनाश जी, टेक एडवांटेज ऑफ योर एक्सपर्टीज़ एंड विल रिक्वेस्ट यू टू बी शॉर्ट, क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो चुका है वैसे। कि यदि आपको कहा जाए यूपीएससी सिलेबस बदल दिया जाए तो आप क्या करेंगे उसमें मोटा मोटा, और डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट? खुद मैं थोड़ा इस प्रश्न की व्याप्ति आपकी अनुमति से थोड़ी बढ़ाऊंगा और थोड़े में ही बात करूंगा। मुख्य हल इस समस्या का तो फिर एक बार वही वाक्य दोहराता हूं, व्यवस्था परिवर्तन, सिस्टम चेंज और कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण साथ साथ में आगे जाना जरूरी है। भ्रष्टाचार की भी जड़ कहाँ है उसका भी जवाब है, दोनों में है। सिस्टम डिज़ाइन में भी भ्रष्टाचार है और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो प्रोग्राम है, देर आर नो इजी सॉल्यूशंस, आई एग्री, बट देर आर सॉल्यूशंस, दैट मैं 100% कह रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ, कि देर आर सॉल्यूशंस एंड द सॉल्यूशंस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो सिस्टम चेंज के क्या है, इसके भी कई सुझाव हैं जिसके कि सिटीज़न की भी जिम्मेदारी का हिस्सा उसमें भी आ जाता है। और ये जो चरित्र निर्माण की बात है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो एक हमारे भारतीय दर्शन में जिसे षड रिपु कहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जब तक है वो भ्रष्टाचार व्यक्ति में रहेगा, तुमको अपने आप पे मात करनी है, अपने आप को सुधरना है। उससे भी बड़ी समस्या ईगो है। और वेदों से लेके, संतों से लेके, जिस किसी को जीवन थोड़ी भी समझ में आना शुरू हुआ, उसने हमें हमेशा से बताया है कि ईगो, अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अब आईएएस अधिकारी जब उस कुर्सी में बैठ जाता है तो सत्ता दिमाग में चली जाती है, वो ईगो है। और चाणक्य भी कहता है कि तुमको अपने ईगो पे जीत हासिल कर लेनी है। इसलिए सुझाव बहुत सारे हैं। तो सिलेबस में अगर चेंज कर दिए जाएं, तो कुछ सालों पहले एक GS4 नाम का कंपलसरी पेपर आ गया, उसका टाइटल एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है।
वो लाने में मेरा एक छोटा था हिस्सा से। ये मैं जानता हूँ कि मात्र पेपर देने से थोड़ा ही चरित्र निर्माण होगा, पर पता तो चलेगा, कुछ मूल्यों की, वैल्यूज़ की बात भी होगी। तो सिलेबस में पूरी तरह से जो परिवर्तन चाहिए, आगे चल के शास्त्रीय एकेडमी में प्रशिक्षण जिस तरह का दिया जाता है उसमें परिवर्तन चाहिए, जिसको कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ कहा जाता है, पोस्टिंग, प्रमोशन, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कैसे लिखा जाए, इन सारों में वो परिवर्तन जरूरी है। यहाँ पहले ही अंगुली निर्देश किया जा चुका है कि उस पर वामपंथी एक तरह का अभी भी प्रभाव बना है। तो सिलेबस में अगर मुझको कुछ बताया गया तो मैं कहूँगा कि ये जो वामपंथी भी पूरा एक तरफा ब्रेन वॉशिंग है, वो उस व्यवस्था में मैं परिवर्तन करूँगा। लास्ट वर्ड विद यू साबियो। Well, corruption is a cancer, right? We can pontificate, we can deliberate, but there is only one solution to a cancer. Is that you take it out and you throw it into the bin. It's not like you cut it piece by piece, right? You eradicate the cancer by taking the cancer out. So if you want to remove corruption, and there is ever an intent to remove corruption, then there has to be a very firm, decisive action by the government that I am going to eradicate corruption. If the government, the political leaders themselves, do not want to remove the cancer out, corruption will continue no matter what. No matter what Modi ji says, and you guys know I love him a lot, but the fact of the matter is, corruption does exist. For even something as simple as Uday ji was talking about, I was in Delhi about 6 months ago. In one single day, Sanjay ji, I had a list of the potential postings that were available within the government departments, and the prices attached to it shown to me by 3 different people having almost exactly the same price, and they thought I was connected with people so I could refer some to them. And the going rate was between 5 to 15 crores. So I took the same paper, I said, thank you, this is really sweet, I'll find somebody from you. I took the paper and I mailed it in a letter to Prime Minister Modi and to Amit Shah Singh, sir. This is a note, these are the people. Can we figure out what this is all about? So a posting for a chairman had a price, a posting for a vice chairman had a price, a posting for even senior positions that I don't want to name had a price. I'm not saying that was done by the government, but these people were close to the government. The fact of the matter is, corruption is a cancer. The people of this country are suffering. But the people have no choice but to accept the corruption, and that is why they pay. We are all talking about responsibilities of the people, but the government and the bureaucracy must understand that if you have a corrupt system and you force a person to be corrupt, and because he wants to get his work done, he chooses to be corrupt. There is an IAS officer in Goa, I'll give you an example, you're talking about taxi drivers. An IAS officer in Goa created a plan to take care of all app-based taxi players to be integrated on a platform. But the government took the same idea of the IAS officer, which I thought was brilliant, to bring everybody to create a uniformity amongst the local cab guys and the Olas and the Ubers. And they took that idea and they kept it at the side and said, no, we will not allow Ola and Uber. And that was the statement of the chief minister itself. Because he was forced by the mafia over there, the political mafia, to accept what the taxi mafia was saying. So don't blame the people. People genuinely are integral. They don't want to follow a corruption path. But if the government and the bureaucracy makes them do that, they are forced to do it. So the government must remove the cancer with the bureaucracy. Thank you very much. And since we are short of time, we will not be taking questions. Very sorry for that. Session late start हुआ और उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ. Now we close the session. और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो प्रतिभागी भी हैं, जो हमारे गेस्ट्स हैं, इनको सबको धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.